بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری اور 11ویں بیوی ہیں۔ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ یہاں سے ہے۔ میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحیر بن روبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصع بن بکر بن حوازن بن اکرمہ بن خصیفہ بن قیس بن اعلان بن مضر پہ جا کر جو ہے ان کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا نسب یہاں سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر پہ جا کر جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے ایک ہو جاتا ہے۔ اور فہر سے نیچے ہوتی تو قریش کے اندر شمار ہوتی، اب فہر سے اوپر ہے تو یہ ادنانی قبیلے کے اندر شمار ہوں گی، یہ قبیلہ قریش کے اندر شمار نہیں ہوں گی، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کیا ہے نسب کا تعلق ہے کہیں نہ کہیں۔ یہ بتلایا کہ جو یہ 9 بیویاں ہیں اللہ کے رسول کی، ان کا تعلق اللہ کے رسول سے کہیں نہ کہیں یہ تو قریش کے اندر ہی جو ہے مل جاتا ہے، یا قریش سے اوپر جا کر جو ہے ادنانی قبیلے کے اندر مل جاتا ہے۔ اور جو 2 بیویاں پیچھے ذکر کریں ہم نے ان کا نسب پیچھے لکھ رکھا ہے، صفیہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ نا، ان کا نسب جو اللہ کے رسول سے دور دور تک نہیں ملتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ تو بالکل الگ ہی جو ہے اس سے الگ، یعنی الگ خاندان سے، بالکل یہودی خاندان سے، ہارون علیہ السلام کی اولاد۔ زبیر رضی اللہ عنہ ہے تو عرب قبیلے سے ہی، لیکن وہ عرب قبیلہ بالکل الگ ہے، اس کا تعلق جو ہے نسبی تعلق اللہ کے رسول سے بالکل بھی نہیں ملتا۔ تو ان کے جو ہے پیدائش وغیرہ یہاں دیکھنا ہے۔ پیدائش جو ہے 18 سال قبل نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 18 سال پہلے پیدا ہوئی، 592 ہجری کے اندر۔ پہلے شوہر کا نام تھا ابو رحم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہوا تو یہ 7 ہجری کے اندر ہوا ہے، 7 ہجری 629 عیسوی کے اندر۔ نکاح کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے 36 سال تھی، اور نکاح کی مدت 3 سال 3 مہینے، تقریباً 3.5 سال کے آس پاس جو ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں گے۔ اس طرح 3 نکاح جو ہے اللہ کے رسول کے 7 ہجری کے اندر ہوئے۔ یہ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا، یہ جو پچھلا تذکرہ گیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا، اس سے پہلے جو پچھلے سبق کے اندر تذکرہ تھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 ہجری کے اندر ہوئے ہیں۔ اس کے اثر کوئی نکاح نہیں ہوا، 11 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات ہو گئی۔ تو جو اللہ کے رسول کے نکاح میں رہی ہے یہ 3 سال کچھ مہینے، تقریباً 3 سال 3 مہینے جو ہے اللہ کے رسول کے نکاح کے اندر رہی ہیں۔ ان کا انتقال ہوا 51 ہجری 671 عیسوی کے اندر ہوا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے انتقال۔ ان کی عمر تقریباً جو ہے انہوں نے 81 سال کی عمر پائی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے۔ ان کا دفن جو ہے مقام شرف کے اندر جو ہے دفن ہوئی، مکہ کے قریب ہے، تو گویا کہ مکہ کے اندر ہوئی کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 بیویاں ایسی ہیں جو مدینہ کے اندر دفن نہیں ہوئی بلکہ مکہ کے اندر دفن ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تو بالکل مکہ کے اندر جو ہے اس قبرستان گاہ میں جنت المعلیٰ ہے، جو عمرہ کرنے یا حاجی وغیرہ جاتے ہیں تو جنت المعلیٰ وغیرہ قبرستان کے اندر بھی جاتے ہیں، تو وہاں جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر وہ مکہ کے قریب جو ایک گاؤں تھا مقام صرف، تو وہاں جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ بلکہ ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کے اندر۔ تو صلح حدیبیہ کے اندر کیونکہ اللہ کے رسول لڑنے نہیں جا رہے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی ہے، لیکن مکہ والے اڑ گئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور کچھ شرطوں پر جو ہے ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، کیونکہ ہم نے روک دیا نا، کیونکہ قریش کی گویا کہ اور کفار مکہ کی ناک نیچے ہو جاتی، تو یہ عمرہ کرنے آئے اللہ کے رسول، عمرہ کر چلے بھی گئے، اس لیے انہوں نے کہا بھائی آپ عمرہ نہیں کریں گے اس سال چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایگریمنٹ ہوگا، چلو ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو اب اگلے سال عمرہ کریں گے آپ نا۔ تو جو ہے 6 ہجری کے اندر جو صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
वो उम्रा कज़ा भी कहा जाता है उसको, यानी उसको जो पिछले साल उम्रा करने जा रहे थे उसे कज़ा करने के लिए फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी के अंदर गए। तो जो सफर वो उम्रे कज़ा का जो सफर था 7 हिजरी के अंदर, उसी सफर में जो है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो अल्लाह के रसूल के पास आए हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता लेकर कि या रसूल अल्लाह आप जो है मैमूना से निकाह कर लें। तो उसी सफर के दरमियान मक्का से कुछ पहले जो मकाम सर्फ है वहाँ निकाह हुआ। निकाह होने का फिर जब अल्लाह के रसूल जो मक्का चले गए फिर रुखसती नहीं हुई, तो मक्का में जाने का मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल ने रुखसती करने का इरादा करा, लेकिन मक्का वालों ने पहले एग्रीमेंट के अंदर तय कर लिया था 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे आप। तो अल्लाह के रसूल 3 दिनों के अंदर रुखसती नहीं कर पाए। फिर मक्का वालों से कहा भी भाई मैं जो है 1-2 दिन और रुकना चाहता हूँ, इन्होंने इजाजत नहीं दी। तो फिर अल्लाह के रसूल वहां से वापस हो गए, मक्का से वापस होते हुए मक्का में सर्फ पर फिर जो है वहाँ पड़ाव डाला, क्योंकि पड़ाव इसी तरह डालते थे जहाँ कोई पानी हो, वहाँ कुछ खाने पीने को जो कोई इंतजाम हो, वहीं जाकर जो है पड़ाव डाला जाता था। मकाम सर्फ के अंदर पड़ाव डाला, वहाँ खेमे वगैरह लगाए, तो वहीं जो है रुखसती हुई हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की। और इसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान बिछाया और कहा जिसके पास जो चीज़ मौजूद है वो ले आओ। तो जिस साहबी के पास जो मौजूद थे, खजूर थी, पनीर था, जो थे या उसके अलावा जो भी खाने की चीज़ें मौजूद थी सब ले आए, दस्तरखान पर रख दिया और सब ने खा लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा ये जो है निकाह हो गया, वो वलीमा हो गया है। गोया कि इस्लाम ने बहुत आसान जो है बनाया है निकाह को और शादी को। गोया कि वलीमा भी इतने आसान तरीके से, इतने अच्छे तरीके से हो सकता है। हालांकि एक तो वलीमा सुन्नत है, फर्ज और वाजिब नहीं है। किसी का अगर नहीं है पैसे तो उसके लिए उसको जरूरत नहीं कि वो कर्ज लेकर वो वलीमा करे, उसके लिए जायज नहीं। अगर अल्लाह ने वसत दी है, पैसे है तो अपना करे वलीमा, अच्छी बात है, सुन्नत है और उसको सवाब दिया जाएगा। और अगर किसी का पैसे नहीं है तो वो कर्ज लेकर जो है वो वलीमा करे, उसके लिए जो है जायज, अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह जो है हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है वहीं निकाह हुआ। फिर और किसी मौके पर जो है हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का जा रही थी, तो उसी मकाम सर्फ पर जो उनका इंतकाल हुआ। वो है कि एक अजीब वाक़या जो है इनके साथ, तो उसी मकाम सर्फ पर वहीं निकाह हुआ, दूसरे सफर में वहीं रुखसती हुई, तीसरे सफर में वहीं जो है इनका इंतकाल हुआ, वहीं कब्र बनी। तो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो दूसरी बीवी है जो मदीने के अंदर दफन नहीं हुई, मक्का के अंदर दफन हुई है तकरीबन। इनकी नमाज़ जनाज़ा जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। नमाज़ जनाज़ा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। इनसे निकाह की वजह जो है, एक तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु निकाह लेकर आए इनके चचा, तो उनकी बात को रखना जरूरी था, बड़े हैं, चचा हैं, उनकी दिलजोई मकसूद थी। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो है इनका निकाह क्यों लेकर आए, ये बात भी समझने की है। वही क्योंकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तो अल्लाह के रसूल के कौन है, चचा है ना, तो अल्लाह के रसूल की तरफ से जाते निकाह पैगाम लेकर, और जो हालांकि मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से निकाह का पैगाम लेकर आ रहे हैं चचा, है ना, अल्लाह के रसूल के पास। तो असल में अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के बहनोई हैं। तो चचा हो तो अलग चीज है ना, लेकिन क्या है, बहनोई है मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के। इसी तरह जो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की जो वालिदा है वो दामाद के एतबार से बहुत पावरफुल गुजरी है, के बहुत ज्यादा जो है इनका एक मर्तबा इनको बहुत अच्छे दामाद मिले हैं। इसी तरह जो है एक बात ये भी है कि गोया के हुकूमती एतबार से, बादशाही एतबार से सबसे मजबूत औरत जो है एक गुजरी है फातिमा बिनते अब्दुल मलिक। एक औरत कौन, क्या नाम है, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक। ये औरत जो है इनके बाप जो थे अब्दुल मलिक, वो जो है तकरीबन 3 बर्रे आजम के बादशाह थे, 3 बर्रे आजम के अब्दुल मलिक जो है। अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ तो फिर इनके भाई वलीद जो है वो 3 बर्रे आजम के बादशाह बने। वलीद का इंतकाल हुआ फिर इनके दूसरे भाई और सुलेमान जो है वो 3 बर्रे आजम के बादशाह बने। तो सुलेमान का इंतकाल हुआ तो इनके शोहर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि इन तीनों को तो इतना नहीं जानते, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जो है अक्सर लोग जानते हैं। तो फिर वो 3 बर्रे आजम के बादशाह बने ना। उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ
तो फिर इनके तीसरे भाई वलीद जो है वो 3 बर-ए-आज़म के बादशाह बने, है ना। वलीद का इंतकाल हुआ तो फिर उसके बाद जो है इनके चौथे भाई हिशाम वो 3 बर-ए-आज़म के बादशाह बने, हाँ। तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक जो है, जो औरत है, उनके गोया के बाप भी, 4 भाई भी और शोहर भी, यानी उनके 6 ताल्लुक रखने वाले मर्द 3 बर-ए-आज़म के बादशाह थे। तो गोया के हुकूमती एतबार से और बादशाही एतबार से सबसे पावरफुल और जो गुजरी वो कौन है? फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक। चलिए जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जो तज़किरा आएगा उसमें थोड़ा तफसील से इनको और बतलाएंगे। उसके अलावा जो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा है, इनकी वालिदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की जो है वालिदा, वो दामाद के एतबार से बहुत ज्यादा पावरफुल जो है हुई है और उनको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत पावरफुल दावत जो है मिले हैं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो 18 बहनें थी। उनमें जो अक्सर जो बड़े बड़े दामाद गुजरे उनको गिना देते हैं। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही इनसे अच्छा कोई दामाद हो ही नहीं सकता। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है। उसके बाद जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है, ये भी बनु हाशिम से दीनी एतबार से भी बड़ा मर्तबा रखते हैं और जो है दुनियावी एतबार से, क्योंकि बनु हाशिम का बड़ा जो है नाम था, बड़ा खानदान था। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी जो है बनु हाशिम से। इसके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के रसूल के चचा है भी, और यही जो है मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता लेकर आए थे अल्लाह के रसूल के पास। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ये बनु हाशिम से। इसके बाद जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के रसूल के चचेरे भाई हैं, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सगे भाई हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, ये भी बनु हाशिम से। तो हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु भी किसके दामाद है? मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिदा के दामाद है, हाँ, इनके बहनों ही हैं। और इसी तरह वलीद बिन उतबा, ये मुसलमान तो नहीं थे लेकिन ये पावरफुल आदमी थे बड़े। वलीद कौन है? ये हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हैं। खालिद बिन वलीद कहते हैं ना, खालिद बिन वलीद जो ये, तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद जो है वलीद हैं। क्योंकि हमने बताया था खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कबीला था बनु मखजूम था, वो बड़ा पावरफुल जो है ये कबीला गिना जाता था। बनु मखजूम यहाँ भी है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है बनु मखजूम से हैं। अबू जहल भी इसी कबीले के अंदर था, बनु मखजूम के अंदर। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु भी, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु भी, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी। तो ये वलीद बिन उतबा जो है ये इस्लामी एतबार से तो पावरफुल नहीं थे लेकिन दुनिया में एतबार से जो है बड़े पावरफुल थे। तो इसलिए इनके जो कई दामाद थे, यानी उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की जो वालिदा है वो दामाद के एतबार से बड़ी जो है खुश नसीब गोया के औरत गुजरी हैं। इसी वजह से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता लेकर आए। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की दिलजोई में, क्योंकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि हमारी सास के अच्छे अच्छे दामाद है सारे, अब इनके जो है शौहर का इंतकाल हो गया तो अब और भी जो दामाद मिले वो भी क्या मिले? अच्छा मिले, हर एतबार से जो है वो और अच्छा होना चाहिए। यानी कि दिलजोई में अल्लाह के रसूल ने इनसे निकाह भी किया, क्योंकि बेवा हो गई थी तो सहारा मकसूद था, तो सहारा देना भी जो है एक वजह इनसे निकाह करने की थी।